میرا باپ مجھے نہ روزہ رکھنے دیتا اور نہ ہی نماز پڑھنے دیتا، کہتا تو نماز پڑھے گی یا روزہ رکھے گی تب تجھ پر خدا کا عذاب آئے گا۔ یہ بات سن کر میرا جسم کانپ اٹھتا تھا۔ میرا باپ خود 5 وقت کی نماز پڑھتا اور روزے رکھتا تھا۔ اچانک 27ویں روزے والے دن میرا باپ مر گیا۔ میں خوش ہوئی کہ اب مجھے نماز اور روزے رکھنے سے کوئی نہیں روکے گا، مگر جب میں نماز پڑھنے لگی میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ میرے جسم کے اندر سے میرا نام شمائلہ ہے اور میرے چاچو کی بیٹی کا نام عنایا ہے۔ ہم دونوں بہنوں میں بہت زیادہ محبت تھی۔ میرے چاچو گاؤں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، یہاں پر ہماری زمین تھی۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے زمین کی دیکھ بھال کرنی ہے، جبکہ میرے بابا اپنے حصے کی زمین بیچ کر شہر آ گئے اور ہم لوگ یہاں پر رہنے لگے۔ اب ہمارے حالات بہت اچھے تھے، لیکن پھر ایک دن ہمیں ہمارے دادا کی پرانی وصیت ملی اور اس دن کے بعد ہماری زندگی بدل گئی۔ اس وصیت میں میرے دادا کی 2 مربع زمین نکلی جو انہوں نے اپنے بیٹوں سے چھپ کر لی ہوئی تھی۔ اس بات کو انہوں نے راز کیوں رکھا یہ تو پتہ نہیں، مگر اب اس زمین پر کچھ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ ہم ان لوگوں کو وہاں سے ہٹانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ ہم اس زمین پر کچھ بنا سکیں، پر ہم نے انہیں کہا کہ آپ کو ہمیں کرایہ دینا ہوگا، اور وہ لوگ اس بات کے لیے بھی مان گئے تھے۔ اور اسی سلسلے میں ہم گاؤں آئے ہوئے تھے جہاں میرے چاچو اپنی بیٹی کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے چاچو کی بیٹی عنایا کی امی بھی اس دنیا سے جا چکی تھی اور میری امی بھی وفات پا گئی تھی، اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کے درد سے واقف تھے۔ لیکن جب میں آئی اور میں نے اسے کافی عرصے کے بعد دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے یاد ہے ہم دونوں ہی حجاب پہنا کرتے تھے۔ ہم نے ایک ساتھ ہی حجاب کرنا شروع کیا تھا اور ہم نے باقاعدہ ارادہ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ حجاب پہنیں گے، اپنی شادی پر بھی اور دوسروں کی شادیوں میں بھی۔ لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ اس نے تو اپنا حجاب اتار دیا تھا، میں نے شہر جا کے بھی حجاب نہیں اتارا تھا، اور اس نے گاؤں میں رہتے ہوئے یہ قدم کیسے اٹھا لیا تھا، جبکہ ہم نے تو باقاعدہ قسم کھا کر یہ سب کیا تھا۔ اور اس کے بابا تو گاؤں کی مسجد کے امام تھے، انہوں نے اسے نہیں روکا تھا۔ خیر مجھے کیا پتا تھا کہ میں اس گھر میں داخل ہوگی تو سوائے حیرانگی کے کچھ اور نہیں ملے گا۔ میں نے دیکھا کہ عنایا کے ہاتھ پر ایک عجیب سا نشان تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ تب وہ کہنے لگی کہ کھانا بناتے ہوئے ہاتھ جل گیا تھا، لیکن میں چھوٹی بچی نہیں تھی، اس کا ہاتھ جلا ہوا نہیں تھا بلکہ کٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے چاقو یا کسی چیز سے اس کے ہاتھ پر وار کیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے، وہ شکل سے ایسے لگ رہی تھی کہ جیسے اندر ہی اندر رو رہی ہے لیکن اوپر سے ہنس رہی ہے۔ میں اس کی رگ رگ سے واقف تھی، وہ میری بہنوں سے بھی بڑھ کر تھی اور ہم ایک دوسرے کے لیے جان بھی دے سکتے تھے۔ میرے ابو نے جب چاچا کو اس زمین کے بارے میں بتایا تو وہ خوش ہونے کی بجائے کافی پریشان ہو گئے۔ میرے ابو نے کہا کہ کیا ہوا، کیا بات ہے؟ تب وہ کہنے لگے کہ یہ بات اگر کچھ عرصہ پہلے پتہ چل جاتی تو بہت مناسب ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اب یہ پتہ چل گئی ہے تو کیا برا ہے؟ زمین تو ہماری ہے، لیکن اس کے اوپر لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ اب ہم اس پوری کالونی کو تو وہاں سے ہٹا نہیں سکتے، اس لیے ہم نے انہیں کہا ہے کہ وہ ہمیں کرایہ دیا کریں، کیونکہ قانونی طور پر یہ زمین ہماری ہے۔ اگر ان سے لڑیں گے تو معاملہ آگے نکل جائے گا، کچھ لوگ بغاوت بھی کریں گے۔ اب ان کو کرایہ دینا پڑے گا تو تکلیف تو ہوگی، لیکن تجھے میرا ساتھ دینا پڑے گا، اس لیے تو میں یہاں پہ آیا ہوں۔ میری بیٹی بھی کچھ دن عنایا کے ساتھ رہ لے گی، دونوں بہنیں ہیں، آپس میں خوشی خوشی رہیں گی۔ میرے چاچو نے ایک عجیب بات کر دی، انہوں نے کہا کہ جب اتنے لمبے معاملات ہیں تو چھوڑو اس زمین کو، پہلے بھی تو زندگی گزر رہی ہے۔ ابو نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ زمین ہماری ہے، کیا ہم ایسے ہی سب کچھ چھوڑ دیں گے؟ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں تو یہ جان کر خوشی ہی نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ایسی زمین کے بارے میں جان کر کیا خوشی جس پر اتنے سارے لوگ قابض ہیں، ان سے قبضہ چھڑواتے چھڑواتے ہم لوگ مر جائیں گے۔ میرے بابا نے میری طرف دیکھا، کیونکہ میری امی تو اس دنیا میں تھی نہیں، وہ ہر بات مجھ سے ہی کرتے تھے، میں پڑھی لکھی تھی اس لیے میرے مشورے کو اہمیت دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ تمہارے چاچو کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، لگتا ہے اس کا دماغ گھوم گیا ہے۔ خیر ہم لوگ اپنے اپنے کمرے میں آ گئے۔ گھر کی حالت دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا،
जब चाची हयात थी तो घर बड़ा साफ सुथरा होता था, लेकिन अनाया भी तो थी और गांव की औरतें भी तो बहुत अच्छे से घर को संभालती हैं, लेकिन घर की हालत बहुत बुरी थी। जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए थे, न किसी ने सही से सफाई की थी। यहाँ तक कि किचन की हालत भी बुरी थी। उस किचन से तो पका हुआ खाना खाने को दिल ही नहीं कर रहा था। चाचू खाना बाहर से ही लेकर आए थे। मैंने अनाया से पूछा कि तुमने खाना बनाना छोड़ दिया है? तब वो कहने लगी कि हाँ, तकरीबन छोड़ दिया है। मुझे लगा कि वो सारी रात मेरे साथ बैठेगी, मुझसे बातें करेगी, पहले की तरह हंसी मजाक करेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो तो अपने कमरे में जाकर सो गई थी। मैंने चाचू से पूछा तो उन्होंने कहा कि अनाया बहुत बदल गई है, अब वो पहले जैसी नहीं रही है। तुम कुछ दिन यहाँ पर रहो, गाँव को देखो, पुराने रिश्तेदारों के घर जाओ, मगर अनाया से कुछ मत कहो। मैंने कहा कि ठीक है, मगर मुझे मामला कुछ अजीब सा लग रहा था। चाचू जानबूझकर उसे मुझसे दूर कर रहे थे। सुबह फजर के वक्त भी वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। हम लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। हमारे खानदान की ये बात बहुत अच्छी थी कि यहाँ पर सब लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ने के मामले में कोई भी सुस्त नहीं था। हम लोगों को खुदा का खौफ था। और अब तो माह रमजान का महीना लगने वाला था। मुझे याद है, मैं और अनाया माह रमजान के पूरे रोजे रखते थे और सुबह की नमाज इकट्ठे पढ़ते थे। मगर आज नमाज के वक्त अनाया नहीं आई थी। मैं उससे पूछना चाहती थी कि क्या मामला है, वो क्यों इतना परेशान सी है। जब मैंने उससे पूछा कि नमाज के टाइम तुम कहाँ थी, तो कहने लगी मैं सो रही थी। मैंने कहा कि क्यों, नमाज नहीं पढ़नी थी? उसने कहा कि सुबह सुबह बहुत अच्छी नींद आती है, नमाज के लिए उठो तो नींद खराब हो जाती है, फिर दोबारा वैसी नींद नहीं आती। मैंने कहा कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा इबादत किया करती थी, और ये तुमने हिजाब क्यों उतारा है? मैंने हिजाब की बात की तो उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने कहा मुझे काम है, मैंने नाश्ता बनाना है, तुम जाओ अपने कमरे में, जब नाश्ता बन जाएगा तब मैं आवाज दे दूंगी। मैंने कहा कि हम नाश्ता मिलकर बना लेंगे। उसने कहा कि नहीं, मैं अकेले ही नाश्ता बना लूंगी। और फिर दोपहर में बाबा ने अजीब सी बात कर दी। उन्होंने कहा कि मुझे लगा था कि मेरा भाई मेरा साथ देगा, लेकिन उसे तो किसी बात का पता ही नहीं है। मुझे शहर जाना होगा और किसी वकील से बात करनी होगी, फिर उस वकील को यहाँ लेकर आऊंगा। मुझे 1 हफ्ता लग जाएगा। शुमाइला तुम इसी घर में रहो। मैंने कहा कि ठीक है। मेरे बाबा चले गए। उसी रात मैंने कुछ बहुत ही अजीब देखा, जिसको देखने की मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैंने देखा कि मेरे चाचू अपने ही घर में बने एक स्टोर में जा रहे थे। आधी रात का वक्त था। जब वो अंदर गए तो फिर उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। थोड़ी देर के बाद अनाया के चीखने की आवाजें आने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बुरी तरह से उसे मार रहा हो। उसकी आवाज सुनकर तो मेरा दिल कांप उठा था। वो अपने बाप से कह रही थी कि खुदा के लिए मेरे साथ ये काम मत करें, मैं जीते जी मर जाऊंगी और अपने खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगी। मेरे चाचू उसके साथ ऐसा क्या कर रहे थे कि अनाया चीख रही थी। मेरा रात के वक्त स्टोर में जाने का दिल नहीं कर रहा था। मुझे डर लग रहा था। ये मेरा घर नहीं था। जब आप किसी के घर में जाते हैं तो आपको डर लगता है, इसलिए मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं आ रही थी कि मैं जाकर पता करूं कि उस स्टोर में क्या हो रहा है। लेकिन उस रात मैंने अनाया के रोने और चीखने की आवाजें सुनी थी। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैं हिम्मत करके उस तरफ चल पड़ी। मैं एक एक कदम बढ़ाती वहां जा रही थी। मैं स्टोर की खिड़की के पास पहुंच गई थी। मैं बता नहीं सकती मुझे कितना ज्यादा डर लग रहा था। मैंने जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया था। जब अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश फना हो गए। अनाया को चाचू ने जंजीरों के साथ बांध रखा था और कहा कि सुबह तक यहीं पर पड़ी रहना। अगर तुम्हारी चूं की आवाज भी बाहर निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो लोग जल्द तुम्हें यहाँ से आकर ले जाएंगे और फिर मैं भी चला जाऊंगा। उसके बाद ये जमाल जाने और उसकी बेटी शुमाइला जाने, मुझे जमीन की कोई फिक्र नहीं है। मैं तो अपने मामलात पहले ही बराबर कर चुका हूँ। वो मेरे बाबा के बारे में बात कर रहे थे और अनाया को कहीं भेज रहे थे। खुद भी कहीं जाने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अनाया को जंजीर से क्यों बांधा हुआ था? अनाया हाथ जोड़ते हुए रो रही थी कि बाबा मेरे साथ ऐसा ना करें, मेरी जिंदगी और आखिरत बर्बाद ना करें। मुझे अल्लाह का नाम लेने दें, मुझे नमाज पढ़ने दें। मैंने नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, रोजे रखने हैं। उन्होंने कहा कि चुप कर जा, तेरा अब इन चीजों से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए तू इन चीजों को छोड़ दे, तेरी आखिरत बर्बाद होगी।
तू दोज़ख में जाएगी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तेरी आखिरत के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर उन लोगों को शक पड़ गया तो वो तुझे भी मार देंगे और मुझे भी। मैंने ये मंजर देखा तो मैं डर गई, वहां से वापस आ गई। मेरे चाचू की बातें मुझे कुछ समझ तो आ रही थी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते थे। वो उनकी इकलौती औलाद थी और उसके अलावा उनका इस दुनिया में कोई था ही नहीं, और ये उसके साथ इतना बड़ा जुल्म कर रहे थे। वो कैसे किसी जानवर की तरह जंजीर से बंधी हुई थी। न उसको नमाज पढ़ने देते थे और ना ही कुरान पढ़ने देते थे, लेकिन ये सब क्यों कर रहे थे वो। मैंने अगली सुबह छुप कर अनाया के कमरे में देखा। वहां पर तो कोई कुरान वाकई में मौजूद नहीं था, ना ही कोई जायनमाज थी। यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा था जहाँ पर हम लोग नमाज पढ़ा करते थे। उधर इन्होंने काट कबाड़ का सामान रख दिया था, लेकिन खुद तो अभी भी मस्जिद के इमाम थे। सब लोग उन पर भरोसा करते थे। अब मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब सिर्फ अनाया ही दे सकती थी, लेकिन मैंने उसे देखा था, वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इसलिए मुझे किसी ऐसे मौके का इंतजार करना था जिसमें मैं उससे आराम से बात कर सकूं। तभी तो वो मुझ पर भरोसा नहीं कर रही थी। जब इंसान किसी मुसीबत में होता है तो वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता। मेरे बाबा ने मेरे चाचू से जब दोबारा बात की तो मेरे चाचू ने साफ साफ कह दिया कि मुझे तुम्हारी जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो जमीन कभी भी नहीं छूटेगी। इसी तरह के केस में तो जमीन वाला मर जाता है और जमीन कभी खाली नहीं होती। तुमने जो करना है करो, मुझे तुम्हारे साथ कोई केस नहीं करना और ना ही मुझे हिस्सा चाहिए। बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। वो ऐसा कैसे कह सकते थे कि वो तो अपनी जान छुड़वा रहे थे। उनकी तो इस पूरे गांव में बहुत ज्यादा इज्जत थी। गांव की मस्जिद का इमाम होना कोई छोटी बात नहीं थी। वो लोगों को मशवरे दिया करते थे, लोग उनसे आकर अपने मसाइल बयान करते थे। और घर में उन्होंने अपने ही बेटी के साथ जो रवैया रखा हुआ था वो सब क्या था। मैंने एक दिन अनाया को कहा कि मुझे उससे जरूरी बात करनी है। मैं उसके कमरे में चली गई। वो मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी तो मैंने चिल्लाकर कहा कि मुझे सब पता चल गया है। तुम्हारे जिस्म पर ये निशान किस चीज के हैं? तुम क्यों लंगड़ा लंगड़ा कर चलती हो और सारी रात उस स्टोर में क्यों गुजारती हो? चाचू तुमसे क्या कह रहे थे मैं सब कुछ देख चुकी हूँ और सुन भी चुकी हूँ। अब तुम मुझे बताओ कि ये सब क्या है, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। उसने कहा कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकती हो। उसने कहा कि तुम इस सब से दूर रहो, नहीं तो जो शख्स अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ कर सकता है वो अपनी भतीजी के साथ भी कर सकता है। ताया अब्बू को कहो कि तुम्हें यहाँ से लेकर चले जाएं। मैंने कहा कि नहीं, अभी बाबा आ जाएंगे तो मैं उनसे भी बात करूंगी। मुझे पुलिस भी बुलानी पड़ी तो मैं पुलिस भी बुलाऊंगी। वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अनाया ने अपना सर पकड़ लिया। उसने कहा कि लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा, नहीं तो तुम कोई और मुसीबत लेकर आ जाओगी। मैंने कहा कि हाँ, मुझे बताओ कि असल बात क्या है। उसने कहा कि बाबा इस गांव की मस्जिद के इमाम हैं और बाबा को मस्जिद वालों ने खजांची बनाया हुआ था। इस गांव के जमींदार ने बाबा के पास 80 लाख रुपया रखवाया था ताकि इस मस्जिद के साथ मदरसा तामीर करवा सकें, लेकिन बाबा की दस्तरस से वो पैसे चोरी हो गए। अब अगर बाबा उन लोगों को ये कहेंगे कि पैसे चोरी हो गए हैं तो वो कभी भी यकीन नहीं करेंगे और जमींदार तो बाबा को जेल भिजवा देगा। गांव वाले बाबा को बुरा भला कहेंगे, इसलिए उनको पैसों की सख्त जरूरत थी। उन्हीं दिनों एक लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ था जो दूसरे गांव का था। उसका नाम आकाश था। वो मुझसे शादी करना चाहता था। उसने मुझे यहाँ पर कहीं देख लिया था। वो अपने दोस्त के साथ यहाँ एक शादी पर आया था और मैं भी उसी शादी में गई हुई थी। उसने जब इस घर में रिश्ते की बात की तो जाहिर है बाबा ने साफ इनकार कर दिया कि हम गैर मजहब लोगों में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे। शुमाइला, यकीन करो, इससे पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर वो लड़का बार बार आने लगा, मेरे पीछे पीछे फिरने लगा। मैंने बाहर आना जाना छोड़ दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। उसने बाबा को एक ऑफर दे दी और बाबा भी इसीलिए बैठे थे क्योंकि बाबा ने तो उस 80 लाख रुपए का इंतजाम करना था। उसने बाबा को कहा कि वो उनको मेरी मुंह मांगी कीमत देगा, उनका कर्जा भी उतर जाएगा और पैसे भी वापस मस्जिद के अकाउंट में चले जाएंगे, लेकिन बाबा को अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ करना होगा, यानी कि मेरी शादी उस हिंदू लड़के से करनी होगी। और फिर जाहिर है कि उसके बाद उनको ये गांव भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि गांव वाले बाबा को यहाँ रहने नहीं देंगे। तभी तो बाबा मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं।
उन लोगों ने ये शर्त रखी है कि लड़की जब हमारे घर आ जाएगी तो कुरान और नमाज बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगी, ना रोजे रखेगी, बस वो हमारे मजहब पर चलेगी और आप अपनी बेटी को समझाकर भेजेंगे, क्योंकि इसके बदले हम लोग आपको इस लड़की की कीमत दे रहे हैं। मेरे बाबा ने मुझे गैर मजहबियों में बेच दिया है, समझो कि उन्होंने मेरा सौदा कर दिया है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। वो लड़का बुरा नहीं है, मैंने उसके बारे में पता करवाया है। मुझे उसी लड़की ने बताया जिसकी शादी में वो आया हुआ था। उसने कहा कि वो इंसान बुरा तो नहीं है, लेकिन गैर मजहब से है, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा है या बुरा है, क्योंकि उसके साथ तो तुम्हारी शादी होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए अब बाबा ये सब कुछ कर रहे हैं। बाबा के सर पर बहुत बड़ी मुसीबत सवार है और वो अपना आप भुला बैठा है, और वो अपनी इज्जत को दांव पर नहीं लगाना चाहते। इसीलिए वो मुझे नमाज और रोजा और कोई इबादत नहीं करने देते। अगर मस्जिद की कमेटी वालों को पता चल गया कि ये सब कुछ उन्होंने किया है तो बहुत बुरा होगा। अभी कुछ अरसा पहले ही उनसे पूछा गया था कि पैसे महफूज पड़े हैं, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल महफूज पड़े हैं, और अचानक से ये नहीं कह सकते कि पैसे तो चोरी हो गए हैं। अब बस 1 महीने का वक्त रह गया है, वो लोग मुझे लेने आ जाएंगे और फिर बाबा उनकी रस्मात के साथ मेरी शादी करवा देंगे और मैं हमेशा के लिए वहाँ चली जाऊंगी। लेकिन मैं ना तो शादी करना चाहती हूँ और ना ही अपने मजहब को, नमाज को, रोजे को छोड़ना चाहती हूँ। इसलिए मैं जब भी नमाज पढ़ने लगती हूँ तो बाबा मुझ पर गुस्सा करते हैं, हाथ उठाते हैं, मुझे झूठ बोलकर डराते हैं। उन्होंने मुझे बहुत मारा है। पहले मुझ पर सिर्फ गुस्सा करते थे, डांटते थे, बुरी बुरी बातें करते थे, फिर मुझ पर हाथ उठाने लगे। लेकिन जब मैंने हाथ उठाने से नमाज को नहीं छोड़ा, तब उन्होंने मजबूरन मुझे जंजीर से बांधना शुरू कर दिया है। ये तो तुम आई हो तो मुझे सुबह सुबह खुला छोड़ देते हैं ताकि मैं घर के काम वगैरह कर लूं, नहीं तो मैं पूरा दिन इसी स्टोर में पड़ी रहती हूँ। मेरा हिजाब भी इन्होंने ही उतारा है। कहते हैं कि अब तुमने हिजाब नहीं पहनना। वो मुझे कुर्बान कर रहे हैं अपने लिए और अपनी इज्जत के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा के दिल में भी अब चोर आ चुका है। उन्होंने पूरे गांव के मुख्तलिफ लोगों से कर्ज लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने इतना ज्यादा कर्जा ले लिया है कि वो यहाँ नहीं रह सकते। जैसे ही वो लोग मेरी कीमत देकर मुझे ले जाएंगे, बाबा मुझे उनके हवाले करके खुद यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे, ताकि उन्हें कभी किसी का कर्जा वापस ना करना पड़े। बड़े लोग उन पर भरोसा करते हैं, इसलिए उनको कर्जा दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कि बाबा को अचानक से क्या हो गया है, लेकिन यही सब कुछ हो रहा है। और अब तुम कुछ भी नहीं करोगी, सिर्फ चुप रहोगी। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, इसीलिए बताया है कि तुम अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाओ। मैं तो ये सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन असल में मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। लेकिन अनाया को पता नहीं चले कि मेरे दिमाग में कोई प्लान है। मैं अपने बाबा को लेकर वहां से चली गई और फिर अपने बाबा को सब कुछ बता दिया। वो भी हैरान रह गए, और ऐन उसी दिन जिस दिन उसकी शादी होनी थी, हम लोग पहुंच गए। सारे गांव को इस हरकत के बारे में पता चल गया था कि कमाल अपनी बेटी की शादी किसी किसी गैर मुस्लिम लोगों से करवा रहा है। सबसे पहले तो मेरे बाबा ने अपना शहर वाला घर बेचकर मस्जिद के पैसे गांव के जमींदार को वापस कर दिए और कहा कि वो मदरसा बनाने की जिम्मेदारी किसी और को दे दे। उसके बाद बाबा ने चाचू का सारा लिया हुआ कर्जा पैसा भी वापस किया था। फिर हम लोग चाचू और अनाया को जबरदस्ती शहर ले आए। गांव की थोड़ी सी जमीन और घर बेचकर हमने यहाँ फिर से एक मकान ले लिया था। अनाया भी खुश थी। असल में चाचू डिप्रेशन में चले गए थे। पैसे चोरी होने के बाद उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। और फिर जब वो हिंदू लड़का मिला तो फिर चाचू ने बगैर सोचे समझे अपनी बेटी का सौदा कर दिया। अब चाचू का एक बहुत अच्छे डॉक्टर से इलाज चल रहा है और वो काफी बेहतर भी हो गए हैं। अब वो शर्मिंदा हैं कि वो ये क्या करने चले थे। अगर वो अपनी बेटी को बेच देते तो अल्लाह भी उन्हें कभी माफ ना करता। खैर आज सब कुछ ठीक हो गया है। हमें हमारी जमीनों से किराया भी आ रहा है। वो गैर मुस्लिम लोग अनाया के पीछे यहाँ भी आए थे, मगर बाबा ने उन्हें इनकार कर दिया और वो बातें सुनाते हुए वापस चले गए थे। आज अनाया और मैं बहुत खुश हैं और हंसी खुशी एक साथ रह रहे हैं।